Welcome to my YouTube channel, Shivakan Education. In third part, you have to understand how to change, means for the practice point of view, you should mind. देखिए अब एक्सरसाइज समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हम आपको जो रूल्स होने चाहिए वो हमने आपको समझाया है, और सिंपल सेंटेंस में क्या क्या परिवर्तन होता है, व्हाट आर कन्वर्जन इन सिंपल सेंटेंस, assertive sentence, you have been well guided. Mind over it and then use in your exercise. Now you have to apply your telling rules of present of simple sentence as you have been told. Out of comma, inverted comma, sentence is known as reporting verb, and under inverted commas written sentence is understood as reporting now speech. You have to apply your telling rules of present of simple sentence as you have been told. Out of comma, inverted comma, sentence is known as reporting verb, and under inverted commas written sentence is understood as reporting speech. Now you have to apply your rules. First you have to change the reporting verb. As you have been told, in place of said to, you have to put up told. He told me. Second changing, removing comma, inverted comma, you have to put up that connector. Then you have to mind over the person of reporting speech. In the form of subject, you are seeing there is second person you. Then you have to change on behalf of object of the reporting verb, me, and its subject becomes I. Then you have to mind over the tenses. Are playing. Such sentence is concerned with the present continuous tense. Such sentence means reporting speech is concerned with present continuous tense, so that you have to change it in past continuous. Means in place of is and are, mean in place of are, you have to change only was, as you have been told, with the I. Was helping verb is used in past continuous. In past continuous, then you have to write I was playing again. नाउ का देन कन्वर्ट कर दें, और लास्ट में इन्वर्ट का मास को हटाएं और फुल स्टॉप कर दें। देखिए ये आपको स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए
कि कामा इन्वर्ट कामा के बाहर का वाक्य जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्ट कामा के अंदर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है। चेंज हमें दोनों को करना होता है, दोनों एस्पेक्ट्स में परिवर्तन करना होता है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें वर्ब को चेंज करना होता है। यदि वहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप सेट टू को, सेज टू को या से टू को हटाएं, अन्यथा आप वैसे के वैसे रखें। मीन्स सेट टू को हटाकर आपने रखा यहाँ पर टोल्ड। आफ्टर दैट रिमूव द comma invert comma and put up there that connector, because reporting speech is related with the present continuous tense. As you have been understood the rule of present continuous, subject plus ismr plus first form plus ing plus object plus other word. Then you can easily change in place of person you second person है, you, your, yours, thou, thine, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मीन्स मी के अनुसार बदलता है। मी का हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, इसलिए वहां पर आई रखा गया। आई के साथ अब हमें टेंस पर माइंड करना होता है कि यू आर प्लेइंग अ गेम नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हमें इसको किसमें चेंज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस में, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देन यू हैव टू पुट अप in place of are according to I was, and other you have to put up same to same, playing a game now को बताया गया है, then चेंज कर दीजिए और फुल स्टॉप कर दीजिए, इन्वर्ट कामा को आप हटा दें। ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में आ गया। देखिए अब हमें दोनों, ये डायरेक्ट नरेशन है, हमें दोनों एस्पेक्ट पर ध्यान देना है। लेफ्ट साइड में कामा और कामा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है। इनवर्ट कामा के अंदर इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो जो है रिपोर्टेड स्पीच में शो किया है, इनवर्ट कामा के अंदर रखा जाता है, इसलिए वो लिखा हुआ है You did not write an essay yesterday. अब दोनों पर आप माइंड करिए कि फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में है आउट ऑफ कामा इनवर्ट कामा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उस वो सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, किस टेंस से जुड़ता है, ये हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सच sentence is concerned या has been concerned, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़ता है, क्योंकि यहाँ हिंदी में आप अर्थ निकाल लें कि राम आपसे कहता है, लास्ट में ता है, इसलिए where we find at the last of any sentence ता है, ती है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ एक्सेट्रा, जहां भी आपको फाइंड दिखाई देता है वो वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब आप एक निश्चित हो गए और यहीं पर आपको फॉर्मेलिटी आपकी दिखेगी कि आप क्या करेंगे कि जो सेकंड सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस नहीं बदलेगा, इफेक्ट हो गया। अब आप इसका टेंस ना बदलें, केवल पर्सन और अदर चेंजिंग कर दें, बस कनेक्टर जोड़ दें और सेज टू के अंदर इसको हटा करके टेंस कर दें। कामा नोट कामा को हटाइए, यहाँ पर दैट कनेक्टर लगाइए,
क्योंकि अगला सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच वो सिंपल सेंटेंस है, केवल उसमें पर्सन बदलना है। अब देखें आप कैसे बदलेंगे, प्लीज माइंड। लिखेंगे राम सेज टू को हटाइए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए आप हटा दें। पहले आपको ये बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो आप उसे सेज टू से को या शेड को या सेज को ना हटाएं। तो लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू दिया हुआ है, इसलिए आप हटाएं। यहाँ आप लिखें राम टेल्स, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए आपको सेज टू की जगह पर टेल्स लगाना होगा। राम टेल्स यू, कामा एंड कामा को हटाइए, दैट कनेक्टर लगाएं। अब आइए पर्सन पर। यू इज सेकेंड पर्सन एज यू हैव बीन टोल्ड। सेकेंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इज आल्सो सेकेंड पर्सन, देन इट कैन नॉट बी चेंज एंड यू हैव टू पुट अप यू। यू को यू ही रखिए आप। उसके बाद ये सेंटेंस पूरा वैसे लिखना है। यू डिड नॉट राइट एन एसे। यस्टरडे को चेंज करना है, इस जगह पर आपको द प्रीवियस डे लिखना है। द प्रीवियस डे, और कामा एंड कामा को रिमूव कर देना है और वहां रख देना है फुल स्टॉप। ये आपको परिवर्तन करना है। सिर्फ इसमें क्या परिवर्तन हुआ, सेज टू को हटाया गया, टेल्स रखा गया, बाकी आपका सेंटेंस सेम टू सेम बना। यदि यहाँ पर यू ना होता, आई होता, वी होता तो शायद ये चेंज हो जाता आपके रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है। यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, दाउ आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन आई, वी, माई, मी, आर, अस यदि होता तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता, इसलिए ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। यहाँ पर भी यू है इसीलिए यू रखा गया। टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड एज यू हैव बीन गाइडेड और टोल्ड, कन्विंस्ड कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला और क्यों को त्यों रखा गया, केवल अदर वर्ड चेंज हुआ है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे करना है, इनवर्ट कामा को हटा करके लास्ट इनवर्ट कामा को फुल स्टॉप रख देना है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। देखिए यहां सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दीजिए आप। कामा नोट कामा से बाहर के वाक्य को आप देखें, इस जगह पर आप दिखेगा कि लास्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट न होने के कारण आपको शेड को नहीं हटाना है, इसे शेड को शेड ही रखना है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन डोंट कन्वर्ट और डोंट रिमूव द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आप रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को सेम टू सेम उसे रख दीजिए, उसे हटाने की, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना है। दूसरा परिवर्तन ये करना है कि कामा इनवर्ट कामा को हटाना है, इसको रिमूव करिए
और ये सिंपल सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए यहाँ पर दैट लगाएं। आप कनेक्टर जो है यहाँ पर दैट लगा दें। उसके बाद आप पर्सन पर आइए। यू इज सेकंड पर्सन, यू, योर, योर्स, दाउ, दाइन, ये सेकंड होते हैं। और सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। बट यू हैव टू माइंड एनीबडी टॉक टू एनीबडी, नॉट सेल्फ। इफ ही टॉक्स सेल्फ, then that person is understood as mad, mental, पागल। जरूर आप यहाँ तीसरे व्यक्ति से वो व्यक्ति बात करता है, कर रहा है। तीसरा थर्ड पर्सन जरूर है यहाँ। वो थर्ड पर्सन कौन होता है ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर थर्ड पर्सन होगा, हिम होगा, हर होगा, देम होगा। ये थर्ड पर्सन कोई न कोई एक व्यक्ति को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर है, उससे वो बात कर रहा है, इसलिए इनके अनुसार आप चेंज कर देंगे फटाक से पर्सन को। अब आप देखें हम चेंज कर रहे हैं कैसे होता है। द टीचर said, said को said ही रखें। You do not have its object, that लगाएं। अब आइए आप अपने पर्सन पर। यू सेकंड पर्सन है, ऐसे आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ थर्ड पर्सन समझें, हिम, हर, देम, इनमें से कोई एक चूज कर लें, उसके मुताबिक आप चेंज करें। उसका सब्जेक्ट की रूप नॉमिनेटिव केस यहाँ रखें। यहाँ पर ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं, और ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, और दे भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक आप रख सकते हैं नॉमिनेटिव केस। और according to that you have to put up as he, आपने रख दिया। उसके बाद टेंस पर आइए। टेंस आपका कौन सा है इस पर माइंड करिए। You do not read carefully now, इसका मतलब यह है कि इस समय अब आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस में रूल बताया गया है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब इसे हमें किसमें बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में। मीन्स सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके कहने का मतलब ये है कि यू को ही आपने कर दिया, उसके बाद डू नॉट को हटाइए, डू को हटाइए, केवल यहाँ पर डिड लगाइए। पहले भी हमने बताया है कि जहाँ पर डू हो वहां पर डिड कर दीजिए। इज एम आर है वाज वर कर दीजिए, हैज हैव है तो हैड कर दीजिए, हैज हैड बीन है तो हैड बीन कर दीजिए। ये एक बड़ा सिंपल सा है, इसको माइंड करिए। द टीचर सेड दैट ही डिड नॉट रीड, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, इसलिए रीड का रेड, रीड रेड रेड होता है, लेकिन स्पेलिंग सेम टू सेम होती है। केवल हम प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो वहां पर हम रीड रेड रेड बोलते हैं, बट spellings are in the same way in all the three forms, तीनों फॉर्म में एक से स्पेलिंग होती है। He did not read carefully,
नाउ का देन, फुल स्टॉप कर दीजिए। ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया और रिपोर्टेड स्पीच ये आपका इनडायरेक्ट में बन गया। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बड़ा इजी है। देखिए यहाँ सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्क कह रहा है आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, और रिपोर्टेड स्पीच ने क्या कहा कि द गॉड्स एंड गॉडेसेस, देव और देवियां हर जगह पाई जाती हैं या पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसका नेचुरल है, फैक्ट है, सच है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये सेंटेंस सेम टू सेम रखा जाएगा, केवल दैट आपको लगाना है और सेट टू को चेंज करना है। इनडायरेक्ट में आपको लिखना है आई टोल्ड, सेट टू को हटाएं क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग सॉरी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आई टोल्ड हिम दैट, बाकी सब सेंटेंस पूरा सेंटेंस ऐसे लिखें, द गॉड्स and the goddesses are found at everywhere. इसे बिल्कुल नहीं बदलना है और लास्ट में इन्वर्ट कॉमा को हटाकर फुल स्टॉप लगा दें। ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि मैंने आप उसे बताया कि देव और देवियां हर जगह पाई जाती हैं, हर जगह वर्तमानित होती हैं, हर जगह उपस्थित होती हैं, लिहाजा ये बदलेगा नहीं। इसे आप नेचुरल है, कुदरती है, प्राकृतिक है, ये कभी नहीं बदल पाएगा। कोई भी व्यक्ति इसे चेंज नहीं कर सकता है। दैट्स ऑल। कृपया आपसे ये कहना है कि आप इसे पढ़ें और जब आपको अच्छा लगे और समझ में आ जाए तो आप अवश्य ही आगे इसे बढ़ाएं, ताकि वो आगे जाने के बाद लोग आगे पढ़ सकें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रही हैं और रेगुलर चलेगी। आप हर चैप्टर को बताया जाएगा। प्लीज़ आप माइंड करें, ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, और कोई भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप उसे मैसेज आउट करें। धन्यवाद।